वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर में आप पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जहाँ पे तीन प्रॉपर्टी का डिस्कशन हुआ। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज इनवेरिएंट एंड चार्ज इज कंजर्व। तो चार्ज कंजर्व means charge neither can be produced nor can be destroyed, but it can change from one form to other form. So, as I said, this is important concept wherever the law of conservation of charge applies. So, see the question regarding this. If it is said that two identical spherical conductor A and B having charge plus 500 coulomb and minus 700 coulomb as shown in the figure. This is sphere A, this is sphere B. What is the charge on a sphere when they are brought in contact and replaced back to the same position? Now what will be the charge on spheres? अब स्पेयर्स पे चार्ज कितना होगा? तो ये जब दोनों अलग अलग थे, इस पे चार्ज प्लस 500 कूलम है, इस पे चार्ज माइनस 700 कूलम है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज नाइदर कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, और उसीलिए आपने लिखा Q1 प्लस Q2। तो जैसे इनको कांटेक्ट मिले है, इनके बीच इंट्रैक्शन हुआ और चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो algebraic sum of charge Q1 plus Q2, let's see, after brought them in contact, now charges is Q1 dash and Q2 dash. So this Q1 plus Q2 will be equal to Q1 dash plus Q2 dash. अब क्वेश्चन में यह भी कहा गया कि दोनों स्फेयर आइडेंटिकल हैं, और आइडेंटिकल हैं दैट मीन्स दे आर कैरिंग चार्ज same after they are brought in contact. अब after brought in contact दोनों के पास सेम चार्ज होगा, इक्वल वैल्यू की और सेम साइन की। So you can say that this Q1 dash and Q2 dash is equal to Q dash because spheres are identical in nature, एक जैसे हैं। Hence simply using this one, plus 500 Q1 minus 700 Q2 is equal to 2Q dash, as Q1 dash is equal to Q2 dash is equal to Q dash. Hence Q dash is equal to minus 100 कूलम, और यही minus 100 कूलम दोनों स्फेयर्स पे होगा। Hence option B is correct. Both the spheres will have minus 100 coulomb and minus 100 coulomb. Is that clear? Because charge neither can be produced nor can be destroyed. जितना वो पहले था, तो कांटेक्ट में लाने से पहले भी नेट चार्ज माइनस 200 था। अब ये माइनस 200 माइनस 100 माइनस 100 दोनों पे बढ़ जाएगा और रिजल्ट भी वही रहेगा माइनस 200। सो एक पे माइनस 100 कूलम और दूसरे पे माइनस 100 कूलम। अब अगर बोर्ड के हिसाब से आप देखें, यहां आपसे कहा जाए कि स्टेट हाउ चार्ज इज कंजर्व, कैसे आप कह सकते हैं कि चार्ज ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेयर इनहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर इनहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, ये केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, क्या पेयर इनहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन का रिलेशन किससे है? तो आपका चल क्या रहा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
So let's see pair annihilation. And pair production. So if you talk about electron and positron, that is nuclear particle. So in this universe, the universe law obeys law of duality. There is particle, so there is antiparticle. Particle and antiparticles. You have to understand. For example, if I ask, what is the antiparticle of electron? That is positive. What is the antiparticle of neutron? Is anti-neutron. So in this universe, if there are particles, so antiparticle also exists, which has almost same property, but one individual property is just opposite in nature. And because of this, you can say that when particle and antiparticle brought near to each other, they destroy. So whenever a particle and antiparticle brought near to each other, they have tendency to destroy each other. So for example, if electron and its antiparticle positron, this is electron and this is positron. Almost they have same mass but charge opposite in nature. When they are brought together, they destroy each other, and after destruction they produce gamma particle plus 1.0203 million electron volt energy. Hence this is nuclear phenomenon. This is not atomic phenomenon because positron is nuclear particle, इलेक्ट्रॉन इज एटॉमिक पार्टिकल. एक पार्टिकल है तो दूसरा एंटी पार्टिकल किसी को भी कर सकते हो. जैसे इनको पास लाते हो दे डिस्ट्रॉय. एज अ रिजल्ट केवल न्यूक्लियर फिनोमेनन में गामा रेडिएशन मिलता है. साथ ही साथ 1.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. ठीक है. दिस फेनोमेनन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, ये किसी भी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के लिए है. दिस इज सेड टू बी, दिस फेनोमेनन इज सेड टू बी पेयर प्रोडक्शन. अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, पॉजिट्रॉन पे चार्ज था, लेकिन गामा पार्टिकल पे चार्ज नहीं है. तो आपने क्या समझा? क्या ये चार्ज खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया? अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया होता तो दोबारा यदि आप गामा पार्टिकल पे इतनी ही एनर्जी देते हो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, सो वंस at gamma particle the amount of energy 1.03 million electron
given. As a result, again this electron and positron particle, they are reproduced. That means even the nuclear phenomenon could not destroy the charge. And once charge cannot be destroyed by the nuclear phenomenon, that means it cannot be destroyed. And hence, since it cannot be destroyed, it cannot be reproduced. यही law of conservation of charge. Charge neither can be produced nor can be destroyed, but it can change from one form to other form. This phenomenon is said to be पेयर प्रोडक्शन, यानी ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिर से प्रोड्यूस हो गए और इन कॉम्बिनेशन बोथ दिस फेनोमेनन पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन दे प्रूव दैट चार्ज इज कंजर्व्ड. पेयर प्रोडक्शन and pair annihilation prove that charge is conserved. क्या ये बात समझ में आई? तो आपको नहीं भूलना है पेयर प्रोडक्शन और पेयर annihilation, they in combination both prove that charge is conserved. Now next point is next property of charge, that it charges leaks as well, जिसका सीधा साधा मीनिंग है चार्ज का लीकेज भी होता है. जब घर में आपके नल है, टेप है, उसमें अपने आप पानी बहता रहे तो आप कहते हैं पानी लीक कर रहा है, लेकिन जब आप नल को खोलकर पानी निकालते हैं देन यू से वाटर इज फ्लोइंग. अब लीकेज ऑफ चार्ज का सेंस क्या है? चार्जेस लीक्स एज वेल. इसका मीनिंग क्या है? यानी फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर टू द एयर. फ्लो ऑफ charge from surface of conductor to air. टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इस बात को समझने के लिए, यानी किसी कंडक्टर के सरफेस से चार्ज का एयर में चलना ही लीकेज ऑफ चार्ज है. अब अगर कंडक्टर की बात करें, ये स्फेरिकल कंडक्टर, जब इसको आप चार्ज देते हो तो चार्ज केवल सरफेस पे होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता. बताओगे क्यों? तो चार्ज resides
at surface of conductor. अगर ये कंडक्टर की जगह इंसुलेटर, तो क्या होगा? अब अगर ये इंसुलेटर है तो चार्ज occupies in whole volume. दैट मीन्स आप ये कह सकते हो चार्ज resides in whole volume of insulator. इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी इंसुलेटर को चार्ज देते हो तो इंसुलेटर का मतलब क्या है? ऐसा मटेरियल जिसमें चार्ज नहीं चल सकता, यानी अपोजिंग फोर्सेस, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उससे ज्यादा, तो ये चार्ज मूव नहीं कर सकता, इसलिए जहां है वहीं पड़ा रहेगा। बट कंडक्टर का मतलब क्या है? अंदर चार्ज चल सकता है, चार्ज इज एबल टू मूव। अब जैसे यहां पे दो चार्ज पार्टिकल, इनके बीच रिपल्सन का फोर्स होगा, ये भागेंगे। अब जब भागेंगे तो कहां रुकेंगे? जहां, कहां तक जाएंगे? सरफेस। अब सरफेस के बाहर फिर से क्या है? एयर। और एयर क्या है? इंसुलेटर। एयर क्या है? इंसुलेटर। दैट मीन्स चार्ज कैनॉट मूव इन द इंसुलेटर। तो अंदर रुक नहीं सकता क्योंकि ये कंडक्टर है, बाहर जा नहीं सकता क्योंकि एयर इंसुलेटर है, तो चार्ज केवल कहां रहेगा? सरफेस पे। अब चार्ज सरफेस, कंडक्टर के केस में सरफेस पे रहता क्योंकि अंदर नहीं रह सकता, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है। दैट मीन्स चार्ज इज इन पोजीशन टू मूव। इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज बाहर जा ही नहीं सकता। याद करें आप, बरसात में बिजली भी गिरती है, और जब कई बार बादल बहुत तेज से टकराते हैं तो उनके सरफेस पे जो चार्ज है, और उस हैवी कोलिजन की वजह से एयर कंडक्टर बन जाता है। जैसे ही एयर कंडक्टर बना, सभी क्लाउड के सरफेस से चार्ज अर्थ सरफेस तक आते हैं, उसी को आप इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग कहते हो। इसलिए इस प्रॉपर्टी को यहां बहुत केयरफुली आपको ध्यान से देखना होगा। तो चार्जेस लीक्स एज वेल का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर टू एयर विच इज इंसुलेटर। ठीक है। अब अगर आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड की ही बात करें, आपका एक नंबर का क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ and dielectric breakdown। ये दोनों क्या चीज है? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये कंडक्टर है और चार्ज इसके सरफेस पे है। सरफेस पे इसलिए है, बाहर एयर है, और एयर क्या है? इंसुलेटर। अब अगर इस चार्ज को बाहर जाना है
तो एयर को कंडक्टर होना होगा। चार्ज बाहर तभी चल सकता है जब एयर कंडक्टर हो जाए। अब एयर को कंडक्टर कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आगे आप पढ़ोगे। इस समय ये ध्यान रखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज दोगे तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा तो एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर एयर इंसुलेटर से क्या बन जाएगा? कंडक्टर। जैसे बहुत सीधा साधा कोई आदमी है, गालियां देना शुरू कर दो तो गुस्सा आ ही जाता है, तो उसका पैसेंस कैसे नापोगे आप? कितनी गाली खाने के बाद गुस्सा आता है। उसी तरह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये एयर इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है, वही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो हम दोनों के लिए यहां कंबाइन लिखें, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड at which air becomes conducting in nature. The maximum electric field at which air becomes conducting in nature, आप इसी को आप कह सकते हो मीन्स dielectric breakdown takes place. Dielectric breakdown, dielectric means insulating behavior. तो जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, यानी एयर इंसुलेटर से क्या बन जाता है? कंडक्टर। सो ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेटिंग बिहेवियर वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है। और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है वही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। अब एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चाहिए आपको, डाई इलेक्ट्रिक strength of air, which is equal to 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। आगे आप पढ़ोगे ये यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, प्लस रिपीटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड का। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर होगा। अगर एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हो गया तो एयर इंसुलेटर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? कंडक्टर। और जैसे ही एयर कंडक्टर बन जाएगा यहां से चार्ज चलेंगे एयर को, और जैसे ये चार्ज एयर को चलेंगे, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड लीकेज ऑफ चार्ज। तो कुछ बात समझ में आई? चार्ज का लीकेज कैसे होता है? चार्ज का लीकेज तभी होता है जब एयर इंसुलेटर से क्या बन जाए? कंडक्टर। और उसे इंसुलेटर से कंडक्टर बनने के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए वो 3 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर है, और यही एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर कहें तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
There is nothing much to say about this property. क्वांटाइजेशन का मतलब है which is not continuous in nature. जब continuous नेचर में नहीं है, that means discrete in nature, टुकड़े टुकड़े में है, वो फुल पीस, उसकी वैल्यू नहीं है। यदि कहा जाए चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मीनिंग क्या है? चार्ज ऑन एनी पार्टिकल is integral multiple of elementary charge. यानी Q is equal to plus या minus n into E, where n is equal to 1, 2, 3 dash dash n, whereas E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. If n is equal to 1, then Q is equal to plus या minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If when n is equal to 2, then Q is equal to plus or minus 1.6 into 2 into 10 power minus 19 coulomb, which is 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. If n is equal to 3, similarly Q goes to plus minus 4.8 into 10 power minus 19 coulomb. यानी चार्ज की वैल्यू किसी भी पार्टिकल पर 1.6 into 10 to पावर माइनस 19 कूलम का नेचुरल मल्टीपल होगा। यही क्वांटाइजेशन है, यानी किसी भी पार्टिकल पर चार्ज की हर वैल्यू नहीं हो सकती। जब चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये क्वांटाइज स्टेट में है, तो चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होगी। उसके बाद 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होगा। उसके बाद 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होगा, और इसी का मल्टीपल, यही क्वांटाइजेशन है। और इसलिए आप कहते हो चार्ज की वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज क्वांटाइज्ड। और एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम है, यानी किसी भी पार्टिकल पर चार्ज की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती। अब अगर आपसे यह कहा जाए चार्ज on a particle is 3.2 into 10 power minus 21 coulomb, it is true or false? क्या करना चाहेंगे आप? तो चार्ज की वैल्यू इससे कम हो ही नहीं सकती। अगर इससे और कम ऑप्शन में दिया गया है, यानी सच अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, so this is false। ये -21 -19 से कम है, और 1.6 3.2 तो हो सकता है, बट लेस देन 10 to the power minus 19, hence this is false statement। क्या ये बात समझ में आई?
अब लास्ट प्रॉपर्टी आपने जो लिखा हुआ है कि अगर सेम चार्ज हैं तो उनके बीच रिपल्सन होगा, और नॉन सिमिलर चार्ज है तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो सिमिलर चार्जेस experiences force of repulsion, and non-similar charges force of attraction। अब आप जानते हैं कि चार्ज दो ही तरह के हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, और अदरवाइज अगर ये चार्ज है तो पार्टिकल क्या होगा, न्यूट्रल। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी ये सिमिलर चार्ज है तो इनके बीच फोर्स कैसा है, रिपल्सन। अगर एक निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। अब अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, निगेटिव, ये नॉन सिमिलर चार्ज हुए तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, और इनके बीच फोर्स अब रिपल्सन का नहीं होगा, किसका होगा, अट्रैक्शन का। इनके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है दूसरा न्यूट्रल है, और एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है दूसरा न्यूट्रल है, तब भी इनके बीच अट्रैक्शन ही एक्सपीरियंस होता है। क्यों और कैसे, इसे आप आगे देखेंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ इंडक्शन, दैट इज बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो इस तरह से ये केसेस थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो प्लीज टेक केयर, और मेंशन करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट में अपनी अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करें। आप जितना ही ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारे करेज को इंक्रीज करेंगे। थैंक यू।